Hello friends, my name is Divisha. In this video, I will be discussing chapter 31 from exchange, and that's a chapter precisely from variant. Okay, so this is part of micro 2, which is usually studied in semester 4 as per BA Honors Economics course. Okay, and as per BA major course, it's studied in semester 5. Okay, as per the DU syllabus, right? And across many other universities also, this micro 2 syllabus, this is intermediate micro 2, it is helpful for students across different universities. Okay, apart from it, this course will be helpful for all the students who are preparing for MA Economics entrance exam. All right, and otherwise also to understand economics in a better way, this is one of the most important topic to understand. Okay, so let's get started. Now I will take you through little bit concepts from the book Variant, and then I will explain the same through different notes. All right, okay. Now up till now we were studying partial equilibrium, which means that we were just studying in consumers theory, that videos that I have posted before, that how demand and supply they are affected by price of a particular good. So we usually study demand supply in PQ space, and there is one consumer and there is no market in which the two consumers would be interacting as such, right? So there is only one person whose demand and supply curve interact, and that's all. This is how the market is given to us in the partial equilibrium. However, in the general equilibrium analysis, demand and supply, how they are interacting in several markets at the same time, we will study this, and that determines prices of many other goods, right? Let's say here in specifically we will study more than one market, okay, more than one product and more than one consumer who are interacting in the market. So there are several markets in which demand and supply conditions are interacting to give us certain equilibrium in different markets. Okay, so as of now we don't need to memorize anything, just understand it's a general equilibrium understanding of the topic that we are going to study. Okay, now we'll study what is an edgeworth box and why we need to study this edgeworth box. It's just a graphical tool. It's a convenient way to analyze how exchange is happening between two people. Okay, let's say there is an individual 1A and individual B. दो इंडिविजुअल हैं A and B. ओके, एंड वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, और हम इसमें बहुत सिंप्लीफाइड असम्पशन ले रहे हैं कि दो ही इंडिविजुअल आपस में दे आर इंटरेक्टिंग एंड देयर इज सर्टेन वेल्थ. लेट्स से बोथ द इंडिविजुअल A and B हैव सम अमाउंट ऑफ वेल्थ. वेल्थ इज गिवन बाय वेल्थ WA एंड W ऑफ B. ओके, दोनों के पास जो वेल्थ है वो दो गुड्स की है. लेट्स से देयर आर टू गुड्स A and B, लाइक 1 and 2 आर द गुड्स. लेट्स टेक द सेम नोटेशन जो बुक में दिया हुआ है. वी विल गो बाय द सेम सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज क्लियरर, ओके, एंड ईजियर. सो दोनों इंडिविजुअल के पास जो दो गुड्स अवेलेबल हैं 1 and 2, उनकी एंडाउमेंट है. एंडाउमेंट मीन्स उनके पास कुछ वेल्थ है. दोनों लाइक बार्टर सिस्टम में हम चले जाते हैं एंड देन वी अंडरस्टैंड कि दोनों इंडिविजुअल उसी गुड को ओन कर रहे हैं और उसी को ही एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में. ठीक है, सो कंजम्पशन बंडल है, सपोज कुछ और कंजम्पशन बंडल है. एक्स ए इज़ गिवन बाय एक्स इज़ अ बंडल of consumption and W is the denotation for endowment. Okay, so WA denotes wealth of A, XA denotes consumption bundle of A. So consumption is given by XA of bundle है तो फिर first good का consumption and XA of second good का consumption, right? So it's like this. So this is the consumption bundle and B का consumption bundle therefore क्या बनेगा? XB, which is an allocation of XB becomes XB1 and XB2, right? So a pair of consumption bundle, उसको हम कहते हैं XA और XB जो consumption bundle का pair है, it's called an allocation. ठीक है, remember this thing, जो XA and XB का allocation है, that is called as a allocation. ठीक है, एंड एलोकेशन जो है फिजिबल एलोकेशन होती है अगर टोटल अमाउंट ऑफ ईच गुड इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट अवेलेबल.
फिजिबल एलोकेशन, रिमेंबर दिस थिंग, फिजिबल का मतलब होता है कि जितना अमाउंट अवेलेबल है मार्केट में उतना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं. सो दैट मीन्स जो टोटल में कंजम्पशन हो गई ए और बी की, फर्स्ट गुड की, दिस इज गुड 1 मार्केट, ओके, दैट इज इक्वल टू द टोटल एंडाउमेंट अवेलेबल, जो कि एंडाउमेंट ए के पास है और बी के पास है. ठीक है. सिमिलरली गुड 2 की जो टोटल फिजिबल एलोकेशन है दैट इज एक्स ए ऑफ सेकेंड गुड, बी के पास जो सेकेंड गुड है, देन इट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड ए एंड गुड बी. सो इट्स लाइक दिस. सो फिजिबल एलोकेशन इज द जो इंटरेस्ट है इज द इनिशियल एलोकेशन एंडाउमेंट विच इज द एंडाउमेंट पॉइंट इटसेल्फ. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड this through notes and then I will explain you what is an Edgeworth box. Okay, so let's discuss this. All right, so Edgeworth box analysis, what is it? Quickly to recap, there is individual A, there is individual B और दोनों के पास एंडाउमेंट है गुड 1 और गुड 2 की. ठीक है. तो हमारे पास जो है डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू ए 1 एंड डब्ल्यू ए 2 दोनों गुड की एंडाउमेंट है और एलोकेशन एक्स के है, इट इज़ एक्स ए 1 एंड एक्स ए 2. ये हमारी हो गई एलोकेशन. ठीक है. ये हमारी हो गई वेल्थ जो ए के पास है. सिमिलरली बी के पास जो वेल्थ है दैट इज़ अ बंडल डब्ल्यू बी 1 एंड डब्ल्यू बी 2 एंड जो एलोकेशन है दैट इज़ एक्स बी, दिस इज़ एक्स बी 1 एंड एक्स बी 2. ठीक है. ये है हमारी एलोकेशन. नाउ हमने डिस्कस किया अभी जो फिजिबल एलोकेशन है, जो कि फिजिबल है दैट शुड बी फॉर गुड 1 मार्केट क्लियर. मार्केट क्लियर का मतलब जितना सप्लाई है इट इज़ इक्वल टू द डिमांड. ठीक है. सप्लाई कितना है, टोटल एंडाउमेंट एंड दैट इज़ इक्वल टू द टोटल डिमांड कितना है विच इज़ एक्स ए की डिमांड फॉर गुड 1 प्लस एक्स बी पर्सन की जो डिमांड है, एक्स कंजम्पशन की बी डिमांड फॉर गुड 1, राइट. सो एक्स इज़ द bundle of allocation, right. So XA1 plus XB1 it is equal to the total allocation of good 1 and total endowment कितना हुआ W1A plus W1B, right. तो इस तरीके से नोटेशन लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू द टोटल एलोकेशन XA1 plus XB1. सो सब्सक्रिप्ट ऊपर नीचे से मैटर नहीं करता है, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट. दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव. नाउ दिस इज़ फॉर गुड 1. नाउ फॉर गुड 2 मार्केट कैसे क्लियर हो रही है, अगेन सेम कंसेप्ट, टोटल सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड एंड सप्लाई इज W1A प्लस W1B. दिस इज इक्वल्स टू X1A प्लस X1B. Oh sorry, this is for good 2 na, so I'm sorry, yeah, this is how we can write the market is clearing for good 2. ठीक है. यहाँ तक I hope it is clear. Now this is how we say allocation is feasible, right. Okay, now moving on, let's understand how we plot the Edgeworth box को कैसे प्लॉट करते हैं. क्योंकि बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एजवर्थ बॉक्स का कंसेप्ट दिया और यहाँ पर हम ना दो इंडिविजुअल्स का सुपर इम्पोज करते हैं क्योंकि हम ले रहे हैं दो ही इंडिविजुअल हैं से ए, लेट्स से ये ओरिजिन ए का है और ये मेरा टोटल एक्स कह लो या एक्स वाई गुड कह लो या गुड 1 गुड 2 कह लो. ठीक है. सेम नोटेशन लेते हैं. लेट्स से यहाँ गुड 1 है, यहाँ गुड 2 प्लॉट कर रहे हैं. ठीक है. एंड दिस इज़ ओरिजिन फॉर गुड ए. और अगर मैं बी इंडिविजुअल दूसरा इंडिविजुअल को इस तरीके से अगर मैं यहाँ से ओरिजिन लेती हूँ, सपोज ओरिजिन ऑफ बी, दिस इज़ हाउ वी विल राइट. सपोज यहाँ गुड 1 लिखा मैंने, यह गुड 2 है. ठीक है. और अगर मैं इन दोनों ओरिजिन को इसके ओरिजिन को और इसके ओरिजिन को सुपर इम्पोज करती हूँ, देन आई कैन जस्ट सुपर इम्पोज दिस हियर एंड दिस कंप्लीट्स माई बॉक्स.
and I say this is origin of B and this is again good 1 here and this is good 2 here. ठीक है, so both good 1 and good 2 are available to both the individual, right? अभी हमने डिस्कस किया there is an endowment point समवेयर W जो कि हमें दे रहा है एंडाउमेंट पॉइंट एंडाउमेंट ऑफ ए और एंडाउमेंट ऑफ बी दे रहा है. ठीक है, तो ए का एंडाउमेंट अगर हमें पता चल गया तो हमें इसी से दूसरे बी का एंडाउमेंट पता चल जाएगा, क्योंकि जो कि टोटल में ये डिस्टेंस है, दिस इज़ द टोटल सप्लाई ऑफ गुड 1. टोटल सप्लाई मीनिंग टोटल सप्लाई क्या है? एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 बाय ए प्लस एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 बाय बी इंडिविजुअल. ठीक है, सपोज ए के पास इतना वेल्थ है. ठीक है, इतना डिस्टेंस का आई एम प्लॉटिंग, इट्स द वेल्थ दैट ए इंडिविजुअल ओन्स. इतना एंडाउमेंट है, इतना डिस्टेंस मैंने पॉइंट यहाँ पर मार्क किया, और दिस मच इज़ द एंडाउमेंट ऑफ गुड 2. माने कि सपोज़ ये एंडाउमेंट पॉइंट हो गया W. ठीक है, यहाँ पे मेरा WA लाई कर रहा है. WA का पॉइंट क्या है? WA1 एंड WA2. यही पॉइंट हो गया एंडाउमेंट का. तो इफ़ आई जस्ट मार्क इट लाइक दिस इज़ हाउ आई गेट एंडाउमेंट पॉइंट ऑफ ए. दिस इज़ गिविंग मी इतना मेरा डिस्टेंस है which is giving me endowment of good 1 and this much is the endowment of good 2. ठीक है, सिमिलरली आप इस तरफ से ओरिजिन देखोगे तो दिस विल गिव यू रेस्ट इज़ द एंडाउमेंट ऑफ गुड 1. व्हाट इज़ इट? एंडाउमेंट हो गया ना गुड 1 का विद बी, एंड ये डिस्टेंस क्या हो गया मेरे पास? एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 बाय बी इंडिविजुअल. दिस एंडाउमेंट ऑफ गुड 1 बाय बी इंडिविजुअल. ठीक है, अब इन दोनों का पॉइंट प्लॉट करेंगे तो सेम पॉइंट पर आई गेट एंडाउमेंट ऑफ एंडाउमेंट ऑफ इंडिविजुअल बी. ठीक है, तो इससे हमारी टोटल एंडाउमेंट लेट से ई पॉइंट से हमने डिनोट किया, ये मेरा एंडाउमेंट पॉइंट है. ठीक है, आई होप द एंडाउमेंट पॉइंट इज़ क्लियर. अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके, और पर्सनली व्हाट्सएप ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो फिजिबल. Okay, moving on, let's understand how allocation can be plotted. Let's say there is a allocation that we just discussed. ये मेरा पॉइंट है allocation, माने क्या कंजम्पशन कर रहे हैं ए इंडिविजुअल और बी इंडिविजुअल. एंडाउमेंट पॉइंट हमें समझ आ गया, बट ज़रूरी नहीं है वो अपने एंडाउमेंट पर ही कंज्यूम कर रहे हैं, है ना. हो सकता है वो किसी और पॉइंट पर. Let's say I plot with a different color. Now let's discuss the allocation with a different point. Let's say this is the allocation M bundle. Okay, M is just a point that I've plotted, and at this point this is the consumption that A wants to consume of good 1, right? So that means this much becomes X is, let's say, the allocation bundle for good 1 by A individual, and this remaining distance is giving you the X consumption of A individual of good 2. ठीक है, putting together this bundle M is representing us XA1 and XA2, consumption bundle of 1 and 2. ठीक है, however this is my endowment point of both the individual, but A wants to consume how much? A wants to consume less than the endowment it is available, right? You can see from green pen I have mentioned that this much is the endowment और इतना वो कंज्यूम करना चाह रहे हैं, मीनिंग एंडाउमेंट ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है गुड 1 की. सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट गुड 2, ठीक है, देन कंजम्पशन ए इंडिविजुअल की जो कंजम्पशन है गुड 2 की कंजम्पशन ज़्यादा है और एंडाउमेंट कम है. ठीक है, माने हिज एंडाउमेंट पॉइंट इज़ लेस, एंडाउमेंट ऑफ गुड 2 इज़ लेस दैन द कंजम्पशन ऑफ गुड 2. कंजम्पशन ज़्यादा है, इट मीन्स वो क्या ट्रेड कर रहा है? ही इज़ काइंड ऑफ ट्रेडिंग जो एक्सेस ऑफ गुड 1 दैट ए इज़ ओनिंग, है ना. लेट्स राइट विद अ डिफरेंट पेन अगेन सो दैट इट्स प्रीटी मच क्लियरर कि ये जो एंडाउमेंट का एक्सेस है
over the consumption bundle. This is excess, but he is consuming more of good 2, so his endowment of this is good 2 का जो endowment है, it is less than the consumption bundle of good 2, right? So he is kind of trading good 1 for good 2. यही कर रहा है ए इंडिविजुअल, क्योंकि उसके पास एक्सेस में है गुड 1, तो वो इतना डिस्टेंस को ही इज़ काइंड ऑफ ट्रेडिंग, वो ट्रेड कर रहा है, और एक्सेस में कंजम्पशन को, इतना एक्सेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड 2 वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है? तो इसी को हम ट्रेड कह रहे हैं. इन डिटेल हम ट्रेड को, प्राइजेस को इंट्रोड्यूस करके नेक्स्ट टॉपिक में वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है? एंड सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इज़ द कंजम्पशन ऑफ सेम पॉइंट पर कितना बी इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है. लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट एक्स बी का गुड 2 एंड दिस इज़ द एक्स बी का गुड 1 का पॉइंट है, ठीक है? तो फॉर इंडिविजुअल बी पर्सन हम देख सकते हैं कि एक्स बी 1 इज़ ग्रेटर देन डब्ल्यू बी 1, है ना? बी इंडिविजुअल के पास जो गुड 1 है वो इतना है और वो इससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, करेक्ट? तो कंजम्पशन ज़्यादा है, माने वो ट्रेड कर रहा है, से गुड 2 को ट्रेड कर रहा है फॉर एक्सेस ऑफ गुड 1. ये एक्सेस ऑफ गुड 1 कंज्यूम कर रहा है, और कितना वो कंज्यूम कर रहा है गुड 2. सो हम देख सकते हैं यहाँ पर उसका कंजम्पशन इतना है और एंडाउमेंट पॉइंट इतना है गुड 2 का. सो एक्स बी 2 इज़ लेस देन डब्ल्यू बी 2. सो ही मस्ट बी देयरफॉर trading what? He must be trading this good 2 for good 1. So I hope this is clear that both A and B individual, they are trading their excess of the commodity for the other, ठीक है ना? अब हम देख सकते हैं वेरियन की बुक में भी, सपोज़ ये इन्होंने एलोकेशन प्लॉट किया हुआ है जो वो कंज्यूम करना चाह रहे हैं, और ये उनका एंडाउमेंट पॉइंट है, ठीक है? ये आईसीज हमने नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, हाउ वी प्लॉट द इंडिफरेंस कर्व. नाउ सो फार आई होप इट्स क्लियर. जस्ट लुकिंग एट द एंडाउमेंट पॉइंट एंड गिवन द एलोकेशन वी कैन अंडरस्टैंड वो कितना इतना वो ट्रेड कर रहा है टू गेट एक्सेस ऑफ गुड 2. सिमिलरली एक्सेस ऑफ गुड 1 बी इंडिविजुअल इज ट्रेडिंग टू गेट एक्सेस ऑफ इतना वो एडिशनल गुड 2 ले रहा है ना, बी इंडिविजुअल. तो इस तरीके से दोनों इंडिविजुअल ट्रेड कर रहे हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी द इंडिफरेंस कर्व आफ्टर दिस, हाउ दे आर प्लॉटिंग. वी आर प्लॉटिंग द इंडिफरेंस कर्व, राइट? दीज ICs map, right? I hope so far is good. If there is any doubt further, you can post it in the comment box below, okay? How we can plot the indifference curve and how trade happens, fine, for both the individual. Let's say हम utility of A consumer लेते हैं एक्स ए वाई ए, यूटिलिटी ऑफ बी कंज्यूमर भी लेते हैं हम सपोज एक्स बी वाई बी, ठीक है? अब नॉर्मल एक्स ए वाई ए कंसेप्ट आपने स्टडी किया होगा कंज्यूमर्स के कंज्यूमर थ्योरी में, राइट? दैट इफ़ आई प्लॉट एक्स consumption here, let's say this is good 1, this is good 2, मैं अब x और y के फॉर्म में ले रही हूँ, ठीक है? आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड. नाउ x और y दो सपोज गुड्स हैं, एंड अगर इस IC को मुझे प्लॉट करना है, सिंपल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है? इस ओरिजिन पर है तो ICs वुड बी लाइक दिस, कॉन्वेक्स शेप इंडिफरेंस कर्व, राइट? एंड ICs आर गिविंग यू rising IC, higher IC means it is indicating higher utility level, ठीक है? अगर ये U1 है, ये U2 दे रहा है, तो utility from IC2 is greater than utility from IC1, ठीक है? यही मतलब होता है more the goods more the utility, right? And for consumer B, how will you plot the indifference curve for consumer B? Let's understand. लेट्स से बी इंडिविजुअल का अगर यहाँ से मैं ओरिजिन देखती हूँ तो सिमिलरली IC मैप वुड बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है? आपका कॉन्वेक्स शेप ICs बनेंगे, अंडरस्टूड? सो दिस इज IC1, दिस इज IC2, सो दिस इज हाउ
indifference curve for B individual is plotted. This is I for B individual, ये A individual का है, ठीक है. So now we've understood so far कि ICs को कैसे plot करना है. But if you see there is a concept called Pareto optimum और Pareto efficient. इस concept का meaning होता है कि there is no other way to make any one of them better off by deviating to other bundle. ठीक है, इसका मतलब अगर एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं यूटिलिटी, तो उस पॉइंट से मूव करने पर nobody will be better off, right? So that means let's say this is my origin of A. यहाँ मैंने प्लॉट किया origin of B, ठीक है. दिस इज़ गुड x गुड y. सो ये जो मैंने प्लॉट किए इंडिफरेंस कर्व, गिवन दिस इज़ IC ऑफ इंडिविजुअल A, और सपोज़ यहाँ हमने प्लॉट किया ICs ऑफ इंडिविजुअल B लाइक दिस ICB, ठीक है. ऐसे ही अगर हमें IC मैप बनाते जाऊँ, ICA1, दिस इज़ 2, ICA3 लाइक दिस, ठीक है. सपोज़ ये सिमिलरली मैंने ICs का मैप इस तरफ से बनाया है फॉर B इंडिविजुअल, ठीक है. ये ICB1 है, ये ICB2 है, ये ICB3 है, ठीक है. डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व दे रखे हैं. सो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, कैन यू सी द टेंजेंसी पॉइंट हियर, जहाँ पे दोनों इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है, दोनों के स्लोप मैच कर रहे हैं, ठीक है. जहाँ पे आई कैन से स्लोप ऑफ IC1 फॉर A इंडिविजुअल इट्स इक्वल्स टू स्लोप ऑफ IC फॉर इंडिविजुअल B. जहाँ पर दोनों के स्लोप इक्वल हैं वहाँ पर देयर इज़ अ टेंजेंसी, ठीक है. अब ये पॉइंट सपोज़ पॉइंट A है, इस पॉइंट से अगर वो कहीं और डेविएट करता है, सपोज़ A पॉइंट से वो इस पॉइंट पे से B पॉइंट पर मूव करता है, देन आई कैन से, आप ध्यान से समझो इससे, कि B इंडिविजुअल यहाँ पे वर्स ऑफ हो जाएगा क्योंकि वो IC उसके इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं ना. तो A डेफिनेटली बेटर ऑफ होगा अगर A इस पॉइंट से B पे मैं मूव करती हूँ, है ना. अगर इस इधर से इधर मैं IC प्लॉट करती हूँ तो A तो मेरा बेटर ऑफ हो रहा है, बट B के लिए IC प्लॉट करें तो B यहाँ पर इस पॉइंट पे वर्स ऑफ हो रहा है ना. B के लिए यूटिलिटी कम है इस IC पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर. सो कोई भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आप देख सकते हो, उससे अगर मैं कहीं और डेविएट करती हूँ, ठीक है, सिर्फ A से B या A से कोई और पॉइंट मैंने ले लिया D पॉइंट हियर, यहाँ पर A से D मूव करते हैं तो B की यूटिलिटी बढ़ रही है ना. B के लिए IC इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है D पॉइंट पर, बट फॉर A इंडिविजुअल अगेन इस पॉइंट पे A वर्स ऑफ हो जाएगा, इस IC से इधर आ जाएगा, है ना. तो पॉइंट ये है हमारा, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है उससे हम कहीं और डेविएट करते हैं तो एटलीस्ट कोई एक इंडिविजुअल वर्स ऑफ हो रहा है, राइट. इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो पॉइंट ऑफ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी है, ठीक है. यही कंसेप्ट होता है पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का. एंड ये पॉइंट्स देख लीजिए या फिर कोई और पॉइंट्स जहाँ पर भी टेंजेंसी हो रही है, इन सब पॉइंट्स को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, ठीक है, थ्रू अ कर्व, थ्रू अ ग्राफ, आई कैन से ऑल द पैरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स इफ़ आई कनेक्ट टुगेदर, ठीक है, इस पॉइंट्स पर, क्योंकि वी नो ICs आर टेंजेंट. तो ये सब जो पॉइंट ऑफ ऑप्टिमैलिटी है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर्व. इसी कर्व को, इस इक्वेशन को जो कनेक्ट कर रही है, जो लाइन कनेक्ट कर रही है ऑल द पॉइंट्स ऑफ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व भी कहते हैं. और अगर इसको मैथमेटिकली हम देखें, कॉन्ट्रैक्ट कर्व की इक्वेशन क्या बनेगी, एग्जैक्टली यही लाइन से जो हमें ऑप्टिमैलिटी मिल रही है. लाइन से क्या ऑप्टिमैलिटी मिल रही है, ऑप्टिमैलिटी की इक्वेशन क्या हुई हमारी, दैट दोनों के स्लोप इक्वल हैं. इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे दोनों के स्लोप इक्वल हैं, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर स्लोप ऑफ ICA क्या हुआ, एज आपने माइक्रो 1 में पढ़ा हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं.
MUX by MUY, right? It's the ratio of the two MUX and that is precisely but the MRS. ठीक है, minus of slope is the MRS. So let's take mod of it. I can write MUX by MUY for individual A. It is equals to MUX by MUY for individual B. ठीक है, ये जो इक्वेशन हुई ये स्लोप की इक्वालिटी है, और या फिर मैं कह सकती हूँ कि MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बाय इंडिविजुअल A, इट इज़ इक्वल्स टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बाय इंडिविजुअल B. अब व्हेन दो टू MRS आर इक्वल, एट दैट पॉइंट आई कैन से इट्स एन इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर्व. ठीक है, ये समझ आया. कॉन्ट्रैक्ट कर्व की इक्वेशन अगर सपोज एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व की इक्वेशन कैसे प्लॉट करनी है, कैसे क्या इक्वेशन बनेगी. नाउ गिवन हमने ये जो अज्यूम किया है, ये आईसीज दिए हुए हैं, ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है. सो हमें ध्यान रखना है क्या यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है, उसी से ही हमारा MRS निकलेगा. नाउ गिवन आवर केस जो हमने अज्यूम किया है XA YA, यहाँ से हम MRS निकालेंगे. व्हाट इज़ इट? MUX क्या बनेगा? जस्ट क्विकली थिंक. MUX x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, इट्स द डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन ऑफ x, डेरिवेशन ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन ऑफ y. सो न्यूमरेटर बिकम्स YA डिवाइड बाय XA. ठीक है, ये हमारा MRS फॉर A इंडिविजुअल है. सिमिलरली MRS फॉर B इंडिविजुअल बिकम्स अगेन MUX बाय MUY एंड दैट विल कम आउट टू बी YB बाय XB. ठीक है, अब एट ऑप्टिमम कह लो, ये इक्वेशन है कॉन्ट्रैक्ट कर्व की या फिर पैरेटो ऑप्टिमम पॉइंट्स है, पॉइंट्स की इक्वेशन है. ठीक है, दोनों तरीके से समझ सकते हैं. सो वी कैन राइट एट ऑप्टिमम इक्वेशन इज़ YA बाय XA इक्वल्स टू YB बाय XB. ठीक है, so YA upon XA equals to YB upon XB. Now if you solve it, what will it becomes? YA equals to, I can write say YB by XB times XA. ठीक है, इस तरीके से बनेगा. Now in order to solve this, how in equilibrium both are trading, that is the next step to it. So far what we have got is the equation of contract curve, right? Next comes what is the optimum amount of bundle that each individual will consume, right? That will come in a while. So moving back to the chapter here, just a minute. So I hope this is clear from the book that if you read the book now, the book is easily downloadable online. You just you on academia.edu or different websites are there. Free download of variant book is available, right? You can easily download and also read in the soft copy of the book, or you can probably buy the book or the reading available in the market. ठीक है. So now width of the book you can read. It measure total amount of good in the economy. Height measure करता है total amount of good to available in the economy. पर्सन ए का कंजम्पशन चॉइस मेजर्ड इस तरीके से, यहाँ से लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से, और बी का मेजर कर रहे हैं हम अपर राइट कॉर्नर से. ठीक है, अब आप बुक से भी समझेंगे तो इट शुड ऑल बी क्लियर टू यू. और ये हमारे आईसी प्लॉटेड है. इन्होंने इन डिटेल आई हैव टोल्ड यू लाइक ये किस टाइप का आईसी है. हमने एक एग्जांपल लेकर डिस्कस कर लिया है दोनों की यूटिलिटी को डिफाइन करके किस तरीके से हम ये आईसी को प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ ट्रेडिंग का भी आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि दोनों इंडिविजुअल कुछ अमाउंट, एक इंडिविजुअल गिव अप करेगा एंड अदर इंडिविजुअल विल exchange the good. In detail again we will discuss trading in the next video hopefully, right? Just a minute. Yeah, now Pareto efficient allocation I have discussed again. Pareto efficient points हैं point of optimality. ठीक है, जहाँ पर दोनों ICs are tangent to each other and they are intersecting, that is a point of optimality. ठीक है,
लाइक यू कैन रीड इट, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कर्व. जो लाइंस कनेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स को, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं, राइट. लाइक दिस पॉइंट्स जहाँ पर दोनों आईसीज आर टेंजेंट, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहते हैं. सो जस्ट रिमेंबर सर्टेन पॉइंट्स अंडर पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन. देयर इज़ नो वे टू मेक ऑल पीपल बेटर ऑफ, एटलीस्ट वन ऑफ देम वर्स ऑफ होगा, इसका मीनिंग. ठीक है, हमने अभी नोट्स में डिटेल में डिस्कस किया कैसे एटलीस्ट एक पर्सन इस पॉइंट से अगर हम कहीं और डेविएट करें, से इस पॉइंट से यहाँ कहीं डेविएट करें, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ वर्स ऑफ. अगर हम पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट से डेविएट करते हैं, इसीलिए उस पॉइंट को हम पैरेटो एफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, देयर इज़ नो वे टू मेक सम बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ. माने कोई ना कोई पॉइंट पर्सन तो वर्स ऑफ होगा अगर हम डेविएट करते हैं तो. ठीक है, देन ऑल द गेन्स फ्रॉम ट्रेड मस्ट बी एग्जॉस्टेड. जो भी मतलब एक ए इंडिविजुअल अगर ट्रेड ऑफ कर रहा है एक्स कमोडिटी वाई के लिए, देन बी मस्ट बी ट्रेडिंग ऑफ से वाई फॉर एक्स. तो सारे गेन्स जो है ट्रेड के एग्जॉस्ट हो रहे हैं. इसका मतलब फिजिबल एलोकेशन की बात कर रहे हैं. डिमांड टोटल में इज इक्वल्स टू सप्लाई फॉर ईच गुड इन द मार्केट. ठीक है, कोई म्यूचुअल एडवांटेज ट्रेड्स नहीं है, क्योंकि म्यूचुअली एडवांटेजेस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम बंदा पर्सन जो है वर्स ऑफ हो जाएगा बाय डेविएटिंग. ठीक है, आप ये सब इन डिटेल अगर रीड करते भी हो तो यही एक्सप्लेन किया गया है कि आप एडवर्ड बॉक्स के सेट ऑफ पैरेटो एफिशिएंट को कॉन्टैक्ट कब करते हैं. इतना डिटेल में पढ़ने का नीड नहीं है. आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस पॉइंट टू यू. ठीक है, सो गाइज लेट्स डिस्कस मार्केट ट्रेड इन माई नेक्स्ट वीडियो. आई होप फॉर नाउ एडवर्ड बॉक्स Pareto efficiency, Pareto optimality is clearer to you. ठीक है, so if there is any doubt in this concept, you can ask me in the comment box below. Thank you girls, thank you boys, thank you for watching. If you like my video, do subscribe to my channel and like it. Thank you.